ہم حمد و ثنا کریں گے بہروز کے ساتھ مل کر کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے اور ہم سب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. کلوری دے سہارے سبھی گائیں گے پاپی بچ گئے سارے. کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے سارے. اُلٹی سولی تے چڑھیا دکھ ڈالا ہے چڑھیا. اُلٹی سولی تے چڑھیا دکھ ڈالا ہے چڑھیا. مول ساڑا تو بھریا لیکن خون پیارے. مول ساڑا تو بھریا لیکن خون پیارے. کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے سارے. اُدا خون پیارا بن کے زندگی کا نعرہ. اُدا خون پیارا بن کے زندگی کا نعرہ. ہویا ساڑا کفارہ دیکھے پاپ ہمارے. ہویا ساڑا کفارہ دیکھے پاپ ہمارے. کلوری دے سہارے پاپی بچ گئے سارے. سبھی تشریف رکھیں گے اور مسیح یسوع کا فضل اور اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ آپ کی روح جان اور بدن کے ساتھ رہے. آمین. آپ نے اقرار کیا. میں چاہتا ہوں پھر ہم ایک دفعہ اقرار کریں گے. کون سا؟ اودا خون پیارا جس نے ہمارے گناہوں کو ڈاک دیا. بولے نا ڈاک اودا خون پیارا بن کے زندگی کا نعرہ. اودا خون سبھی کیا کریں بھائی آپ ہی بن کے زندگی کا نعرہ. ہویا ساڑا کفارہ کس کا کفارہ ہوا ہے دیکھے پاپ ہمارے. ہویا میرا کفارہ دیکھے پاپ ہمارے. ہویا ہویا میرا کفارہ دیکھے پاپ ہمارے. آمین. آپ نے گایا اور اقرار کیا میرے گناہ کیا ہوئے دامپے کے. پچھلی دفعہ میسج بھی یہی تھا بھی میرے گناہ میں نے آپ کو ڈانپ کر دکھائے تھے نا وہ لہو کی چادر. ٹھیک ہے. تو کفارہ جو تھا نا جی اچانک نہیں ہوا. بھئی آدم نے گناہ کا لے دے پھڑ کے کفارہ دے دیا ایسے ہوا کفارہ نہیں. کفارے کی پوری پلاننگ تھی. علم سابقہ میں خدا جانتا تھا. علم سابقہ میں خدا جانتا علم سابقہ سمجھتے نا آپ؟ جی علم سابق. بھئی سارے علموں سے پہلے ہر ایک کام ہونے سے پہلے خدا اپنے علم سابقہ میں جانتا تھا جس انسان کو جس اپنی محبوبہ کو جس اپنی بیوی کو میں بنانے والا ہوں وہ گناہ کرے گی. میری محبوبہ گناہ کرے گی. جو میری مانت ہوگا وہ گناہ کرے گا. اس کے علم میں تھا. بے علم نہیں تھا. یہ نہیں اس نے غلطی سے بنا دیا, نہیں اسے پتا تھا یہ کرے گا.
اس کے علم سابقہ میں معلوم تھا آدم گناہ کرے گا. جب گناہ کرے گا تو اس کی زندگی میں موت آ جائے گی, اس کی زندگی میں موت آ جائے گی, اور ساتھ بیماریاں بھی آتے ہیں. اور گناہ کے ساتھ سب سے بڑی بات کیا آئی؟ خوف. جس دن اس نے پھل کھایا تو اس نے کہا آدم آدم, تو آدم نے کہا میں ڈرا. گناہ کرنے سے ڈر جبلت میں آ گیا. گناہ کرنے سے کیا ہوا جی؟ گناہ جبلت میں آ گیا. آج تک پرانا آدم کانپتا ہے اور ڈرتا ہے. گناہ کس نے کیا تھا؟ بشر نے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. گناہ کس نے کیا؟ بشر نے. تو کفارہ بچڑوں کا کیوں بھائی؟ گناہ آدمی کرے, گناہ بشر کرے, گناہ بشریت کرے, گناہ انسانیت کرے, گناہ انسان کرے تو کفارہ 4 ٹانگوں والا بچڑا دے. ذوالفقار بھائی, ذوالفقار نے تقریر کی. ذوالفقار نے تقریر کی آپ کے یسوع کے بارے میں. کہتا اس نے 12 شاگرد چنے تو صحیح نہ چنے, میرے حضور نے چنے تو 12 نے 12 وفادار چنے. جی ذوالفقار بھٹو نے یہ تقریر لاہور میں کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے یسوع نے 12 چنے تو 12 میں سے 12 وفادار, ایک تو بے وفا ہو گیا. لسٹ 12 کی ختم. میرے حضور نے کہتا 12 چنے تو 12 کے 12 ہی وفادار. جس کو آپ خدا کہتے, کیا اس کے علم سابقہ میں نہیں تھا یہودا اسکریوتی بے وفائی کرے گا؟ اور بھائی اس نے تو رٹا لگایا ہوا تھا, شریعت میں تھا جو میرے ساتھ ٹیبل پر کھانا کھائے گا وہ میری پیٹھ پر لات مارے گا. وہ جانتا تھا جیسے خدا جانتا تھا بھئی آدم گناہ کرے گا, ایسے یسوع مسیح بھی جانتا تھا یہودا اسکریوتی بے وفائی کرے گا. یہ چور ہے, اس کے علم میں موجود تھا, اس لیے اس کا منہ چوم رہا ہے. تیرنو انجی نوالے دے لیا ہے کھا کیوں بتائے بے وفائی. عمران تیرے ساتھ کوئی بے وفائی کرے تجھے پتا ہو ہیں تو تو اس کے منہ میں نوالے ڈالے گا؟ مشکل ہے, یہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے جی. وہ کیا کر رہا ہے جس کے منہ میں جا میاں جو تو نے کرنا ہے کر لے, تو نے پکڑوانا ہے. اچھا بوسا ہی کیوں لینا سا, اونج نہیں پکڑوا سکتا. کیوں بوسا کیوں لینا تھا؟ کیونکہ یہودی اور پٹھانوں کی شکلیں ملتی جلتی ہیں. پٹھان پشاور چل جانا نشارے جانا کر اس دن محمد پہچانے نہیں جان گیا کون ہے آپس ایک جی شکلاں مل رہی ہیں. اس طرح یہودیاں دیاں آپس شکلاں مل رہی ہیں, اکھاں بھی بلیاں, مچھاں بھی پوریاں پوریاں, داڑھی بھی بڑی بڑی, بال بھی بڑے بڑے, پہچانے نہیں جاتے. انہوں نے کہا جی جیدہ میں بوسا لوں پشانی سے اسے پکڑ لینا, وہی میرا استاد ہوگا. اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور بھائی قیمت پر ایسے نہیں ہو گیا کفارہ. خدا بھی چاہتا تھا پہلے گھرانے کو, آدم کے گھرانے کو کہا کفارہ لے کے آؤ جی. کی لے کے آؤ جی؟ عارضی کفارہ. ایک فروٹ لے گیا خدا کے حضور,
पता नहीं हम कभी लेकर आए हैं या नहीं। वो खुदा के हजूर फ्रूट ले गया तो दूसरा उसके पास भेड़े थी, वो भेड़ का लहू ले गया, मोटी ताजी भेड़, फ्रेश मरी मुकी नहीं, बेदाग सेहतमंद भेड़ ले गया। अब कई कहते हैं जी उसके गले सड़े फ्रूट थे इसलिए कबूल नहीं किए। मुझे ये बताए जिसके अपना खेत हो, अपनी फसल हो, वो तो मांगने वाला उससे कोई सब्जी लेने आ जाए तो गला सड़ा देता है। आपकी सब्जियां नहीं है जी, आप गले से नहीं देते? हम तो जनाब थैला भी पास से दे देते और कहते थे गाली जी, तो वो खुदा को गली सड़ी देगा। और भाई फ्रूट नापसंद आने की वजह ये थी उसकी कुर्बानी में, उसके हदिये में लहू नहीं था। ये लहू की सोच खुदा की थी। दूसरा भरा सियाना सी, उन्हें क्या भाई लहू ले जाते हैं। लहू ਨੂੰ लोग मानते नहीं, भला क्यों लहू को क्यों नहीं मानते? और भाई मफहूम पाया जाता है, लहू में सच्ची तौबा पाई जाती है, तौबा करनी पड़ती है। आप तो जो चौधरी टाइप सी ना, बड़ा जी सी ठाठ हो, मैनू हर गल पूछी जाए, चिट्टा सूट पा के मेरे तो बगैर, तो कहता हाँ मेरे तो पूछो तो बगैर तू कुर्बानी क्यों लेगा, मैनू तो पूछना। तूने क्या तेरा भाई कहाँ? अब देखो खुदा ने जवाब दे दिया, मैं उदा रखवाला है, मैनू की पता कहाँ है? कहता तेरा भाई कहाँ है? ये तू केड़ी जगह पे है? खुदा को नहीं पता था, खुदा को पता था। यहाँ एक बात कहता चलूं, जो यीशु के खिलाफ तकरीरें करते हैं बचता उनका कुछ नहीं है। ना बेटी रही, ना बेटा रहा, ना खानदान रहा, जरदारी खानदान। जो यीशु की मुखालफत करेगा, बात ज़हन में रखना, हम नहीं यीशु के लिए लड़ते, वो खुद ही जिंदा हस्ती है, वो खुद ही इंसाफ कर लेता है। बट्टों का घराना नहीं बचा। अब ना धोखे से यूज करते रहे तो वो अलग बात है, खानदान नहीं बचा। मेरी बात इसलिए सुने, यीशु की बात की मुखालफत ना करो, सुनने वाले भी यीशु की मुखालफत ना करें, क्योंकि वो हकीकी खुदा है। आमीन। वो हकीकी खुदा है। ये कफारा हुआ, खुदा को पता था। क्या था? कफारा हुआ, खुदा को पता था मैंने कफारा देना। फिर कौमों को बताता रहा, हर मजहब में कफारा है जी। एक भी मजहब बताओ जहां कफारा नहीं है जी। हर मजहब में कफारा है। डुप्लीकेट, नकल, इसलिए दिया गया नकल कफारा, इसलिए अक्स दिया गया ताकि असल कफारे तक पहुंच जाए, असल कफारे तक पहुंच जाए। शरीयत में भी, मूसवी शरीयत में भी कफारा दिया गया, और मूसवी शरीयत से पहले भी कफारा दिया गया, हम्मुराबी में भी कफारा दिया गया, और शरीयत में भी, और फजल में भी। फजल का कफारा फर्क है, वो बछड़ों का नहीं है। बछड़ों का कफारा मर जाता है, बछड़ों का लहू जाता रहता है, शफायत नहीं करता। आपके अहद का कफारा शफायत का तालिब लिखा है, हाबल के खून से बेहतर बातें। बातें क्या करता है? और भाई लहू बातें क्या करता है? किस किस पर है लहू? आपका लहू आपसे बातें करता है जी? क्या बातें करता है आपका लहू? जरा मुझे बताओ जी। बोले बोले इमरान भाई, क्या बातें करता है आपका लहू जो आप पर है? लिखा ना बेहतर बातें। सुनिए क्या बातें करता है। कहता तेरी आंख पर लहू इसलिए है तू चंगा हो जाए, तेरे कान पर लहू इसलिए है तेरे कान ठीक हो जाए, तेरे हाथ पर लहू इसलिए है ताकि तेरे हाथ ठीक हो जाए, और तेरे सर पर लहू इसलिए है तेरा सर ठीक हो जाए। तेरे होंठ पर लाल लाल डोरे हैं, लाल लाल। अनवी तेरे कितने लाल लाल होंठ हैं? इमरान तेरे भी कितने कितने? रोज तो देखो जी, रोज मैनू कहती जी एक दफा मैं लिपस्टिक लगा रहा
تو میں کہا گیڑی لائی ویک کے کہنی نہیں لگی نہیں میں کہا کافی لگی این جن خون ہی روڑن دے آئے ایڈی لال 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 لگی اینو سمجھ آ گئی کہ آسمانی لپسٹک لگی ہوئی یسوع دا لہو پھر اس بعد انہوں نے بھائی لہو لگا ہوا ہے ہاتھوں پر ٹانگوں پر دل پر جان پر روح پر پورا لت پت کیسے جی لت پت تو میں یہاں آپ کو ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں جی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے جی یونانی متن میں آپ کو یہ لفظ دکھانا چاہتا ہوں کیا ہے جی ایکلاسموس کیا ہے جی ایکلاسموس اس کا مطلب پوری قیمت دے ادا کرنا پوری کم نہیں آپ کی پوری قیمت دی گئی ہے کیا کرنا جی پوری قیمت ادا کر کیا کرنا فدیہ دے دینا ضامن ہو جانا ضمانت دے دینا پوری ساری ضمانت میری ہے جی ایدہ سارا گناہ میرے دے ایدیاں ساریاں غلطیاں کیڑیاں غلطیاں جو کفارہ ہے کسی ایسی مکاشفہ منگو کفارہ جو کفارہ ہو ایسی کسی ہے ایسی تو پھر تیڑا کفارہ کدوں ہو گیا تو ظہور میں کفارہ نہیں ہوا آپ کا بھائی میری بات کو سمجھیں اس کا مکاشفہ لیں جب آپ کا کفارہ ہوا تھا تو آپ کہاں تھے آپ ظہور میں نہیں تھے آپ کا کفارہ اس وقت ہوا جب آپ نے گناہ نہیں کیا آج آپ نے کفارہ قبول کرنا ہے آج سے 2000 سال پہلے آپ کی قیمت دی گئی ہے کیا دی گئی ہے قیمت کس کو کہتے ہیں جو چیز بہت قیمتی ہو آپ کی قیمت دے دی گئی ہے آپ خریدے گے آپ ایسے سستے نہیں ہیں جی لکھاں چاہیے تسی یسوع دے لہو چاہیے بیش اعلیٰ قیمت اور پھر ساتھ ہے انگلش لفظ جی ذرا یہ بھی دیکھیے سبھی ایٹومنٹ اس کا مطلب ہے پوری قیمت دینا پورا فدیہ دینا اور رہائی دینا اور نجات دینا اور صلح کروا دینا کیا کر دینا صلح پر آپ نے یاد رہنا کیا کر دینا صلح کس سے صلح پہلے تو یہ جانے کفارہ بعد میں گناہ کرنے کے بعد ہوا یا پہلے ہوا میں چاہتا ہوں ایک حوالہ پڑھا جائے مکاشفہ کی کتاب میں سے یہ میک دیا چاہیے بھائی کامران پہ جلدی آپ کا کفارہ کب ہوا اس حوالوں کو یاد کریں رٹا لگائیں 8ویں آیت مکاشفہ 13واں باب اور آیت نمبر 8 جی باب نمبر 13 ہے جی مکاشفہ اور آیت نمبر 8 سے اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے بنائے وقت سے جب سے عالم بنے ہیں عالم بنانے سے پہلے خدا کے ارادے میں یہ بات تھی میں کیا کروں گا جی کفارہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا جی خدا کے ارادے میں سارا پروگرام خدا کے ارادے میں تھا خدا نے پروگرام کیا عالم بنیں گے یہ مٹی کا عالم بنے گا اس پر گناہ ہوگا آسمانوں پر گناہ ہوگا فرشتوں کا کفارہ نہیں دیا گیا فرشتوں کا کفارہ نہیں دیا گیا اگر فرشتے کا کفارہ دیا جاتا تو فرشتہ آج شیطان نہ ہوتا فرشتے کا کفارہ نہیں دیا گیا
कफारा दिया गया है इंसान का, इसलिए इंसान गुनाहगार रहे। बोले इसलिए कफारा दिया गया ताकि गुनाहगार रहे। नहीं, जब आलम बन रहे थे, आलम बनने के वक्त से कफारा हुआ, इसका ज़हूर नहीं हुआ था, इसका ज़हूर नहीं हुआ था। और इसका इल्म तो बनाए आलम के वक्त से था। इल्म पहले से इल्म था भाई, बेटा यसु मसीह जिसको मकस्सा मरियम के रहम में भेजना है, जिसको बशरियत पहनानी है, जिसको बशर बनाना है, बशर ने गुनाह किया है, बशर को ही सजा दी जाएगी। यही अदल है, यही इंसाफ है। अगर गुनाहगार को सजा ना दी जाए तो खुदा मुनसफ नहीं है। लोगों ने कहा रो रो के मां रोंदी सी, रो रो के चलाउंदी सी, गलियां च फिरदी सी। मां जानती थी ये बाप को पसंद आया, ये बाप को, यशाया 53 बाप खुदा को पसंद आया। वो उसे छेटे, उसे कुचले। कुचलना समझते हो? कभी वो डॉक्टर के पास गोली कुटदा है ना? क्यों कुटदा है? पीसदा है, फिर कुट के है ना, क्यों पीसदा है? कुचलदा है। क्यों कुचलदा पिया है? ज्यादा इस मारे कुचलिया गया है ते रूहानियत दा असर ज्यादा है। तेरी रूह, तेरी जान, बदन च जड़ियां बीमारियां उन्हां च जल्द असर करे, इसलिए गोली कूटी जाती है, इसलिए उसे पीसा जाता है जोर जोर से। वो डॉक्टर के पास होती है जी, वो इतनी तैयार होती है, इतनी वो कटोरी होती है, उसमें ऐसे हाँ जी, गोली डंडा पंजाबी में कह लो, ठीक है जी। तो बात ये है, पीसना, यसु को कुचला, खुदा को पसंद आया, बादशाह को पसंद नहीं आया। बादशाह ने कहा मैं हाथ धोता हूँ, ये खून आप पर और तुम्हारी औलाद पर हो, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। खुदा में क्यों कसूर नजर आ रहे हैं? क्योंकि पूरी पूरी कीमत अदा की है, जामन बना है इंसान का, पहले आदमी का जामन बना है। भाई अफजल ने जो गुनाह किए ना, उसकी सजा मैं लूंगा। अफजल ने जो गलतियां की, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उसके कोड़े मैंने खाने हैं। मेरी पीठ पर एकम 40 और 117 लोथड़े मेरे जिस्म से उतार दो, क्योंकि ये अफजल के उतरने थे, ये नवीद के उतरने थे, ये कामरान के उतरने थे। पहला कोड़ा मारा जनाब, ते कितने लोथड़े निकले जी? 3। शुगर की बीमारी बाहर। फिर लोथड़ा मारिया जनाब, ते टीवी की बीमारी बाहर। फिर कोड़ा मारिया, ते जिन्नियां बीमारियां 117 बीमारियां सारे दियां सारियां बार, ते जख्मी ते लहू लहान, ते बुरी हालत करके लहू लहान कर छड़िया। किनू? दरमियानी नू, बशर नू लहू लहान कर छड़िया। जिहदा प्लान बनाए आलम के वक्त से था, उसका इल्म देखते हैं। मुकाशिफ इमाल की किताब 2 बाब निकाले 23 आयत में, उसका इल्म तो फिर इसका ज़हूर भी मैं आपको बताता हूँ। फिर बताता हूँ लड़ाई कौन सी लड़ाई थी जी। इमाल 2 बाब, जल्दी 23। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्मे साबक के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। आमीन। मौत भी यीशु को अपने पास इल्मे साबका से, इसका इल्मे साबका से था। खुदा के पास इल्म था, मैंने यीशु को क्या करना है जी? मसलूब। तो मरियम इस मुकाशफे को नहीं जानती थी? जानती थी, इसलिए मरियम चलाती नहीं थी। गलियों में दुपट्टे रोलती नहीं सी। गाँव वाले दुपट्टे रुलाते थे, यार शर्म करो, मां ने दुपट्टे गली जरूर लड़े।
वो तो जीनत थी, रास्तबाज थी, खुदा को पसंद थी, फरिश्तों से डिस्कस करने वाली खातून थी, खानम थी, गुनेज थी, बच्चों वाली थी, खुदा की बंदी थी। फिर उसने अपनी जुबानी खुद कहा, अब से और फिर के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो इन्होंने गलियां च रोलन दे ते कई वेचन दे दुपट्टे मरियाबाद जा। शर्म करो, मां दे दुपट्टे बेचने बंद करा। तो कफारा इसलिए हुआ है ताकि सुलह हो जाए, पूरी निजात मिल जाए। कहते जी पूरी निजात नहीं है जी, आरजी कफारा नहीं, बच्चों का आरजी था। यसु मसीह का कफारे ने क्या किया? आपको कामिल किया। इब्रानियों का खत निकाले जरा, पतरस के खत में लिखा है, उसका ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। क्या हुआ जी? बाप नंबर 10 और ऐप नंबर 14। एक ही कफारे में, हर साल कफारा नहीं देना पड़ेगा, हर साल लहू नहीं बहाना पड़ेगा जी, एक ही कफारे में जी। क्योंकि उसने एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाप किए जाते। वाह, हर साल। फिर मुकम्मल कफारा कौन सा हुआ? बेहतर कफारा कौन सा हुआ? एक ही। ये गाया भी है, बार 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 लहू बहा। बाइबल कितनी दफा कहती है? एक ही बार, एक ही लहू ने, एक ही कफारे ने हमेशा के लिए क्या कर दिया? क्या किया आपको? कोई कामिल नहीं हो सकता। ये कफारे पर ईमान लाओ तो यहाँ दरी पर बैठे ही आप कामिल हो जाएंगे, वो पीछे कुर्सियों पर बैठे ही कामिल हो जाएंगे। एक दफा ईमान लेकर आओ। लिखा है रोमियो पर, कफारे पर ईमान लाने से फायदा मंद हो। कफारे पर भाई आपकी पूरी कीमत दी गई है, आप कीमत से खरीदेंगे। एक बंदे की कश्ती घूम गई थी, वो ढूंढता रहा, उसे ना मिली, चला गया। उसने बड़ी मेहनत से बनाई, उसने अपने माहिर तरीके से बनाई, उस पर पैसा लगाया, उस पर हर चीज लगाई, तो बड़ी कीमती थी। वो कुबाड़िए के पास चली गई। जब कुबाड़िए के पास चली गई तो उसने कहा, यार ये तो कश्ती मेरी है। ये कश्ती किसकी है? उसने कहा, भाई ये तो मैंने खरीद ली है, अब आपको इसका फिदिया देना पड़ेगा, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। उसने दोबारा उस कश्ती को खरीदने के लिए दोबारा फिर पैसे दिए। कितनी कीमती है उसके लिए जो आपकी कीमत दे रहा है। आप कितने कीमती हैं, आप कितने आला हैं, आपकी कीमत दी गई है। कीमत क्या दी गई है? यीशु का लहू। फिर जो नीचे मैंने लफ्ज़ देखा, इसका क्या मतलब है जी? सुलह करा देना, रहाई करा देना, मिला देना। सुलह कौन सी? लिखा ना बत्ती के नीचे, मुबारक है वो आदमी जो सुलह कराते हैं। मुबारक है वो आदमी जो सुलह कराते हैं। कौन सी सुलह? जो बागे अदन में एक दीवार हायल हुई। दीवार आ गई है जी, किसमें? पर्दा आ गया है। आया ना पर्दा जी साइकिल में? ऐसे कर लेगा जी। बेटा खड़ा हो, जल्दी जल्दी इधर। ये बात खड़ा हो, कामरान भाई आप खड़े हो जाए। हाँ ये जो बैठ जाए, ये देखे, तसव्वुर करें जी, ये पर्दा है जी। यहाँ तक क्या है जी? पर्दा है। ये बंदा आप देख रहे हैं जी, ये काहिन है जी। क्या है जी? काहिन है। ये तसव्वुर करें, ख्याल दे रहा हूँ, ये बंदा जो बैठा हुआ ये खुदा है, इसमें पर्दा है। अब ये पब्लिक इधर है जी, इस खुदा को मिलने आई है। अब मिलाने वाला कौन है जी? काहिन क्या करता? ले आगे कुर्बानी, ले आजी कुर्बानी, ले आदे हदिये, ले आदे सारियां चीज़ां है ना, ले आके खुदा दे हजूर। ਇਹਦੇ बछड़े ਦਾ लहू भी जाके पर्दे ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ खुदा ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? मिला कौन है? दरमियानी। वो भाव अगे आप ही खा जी, अगे पेश करे या ना करे, फिर भी वो करते थे।
क्योंकि गुनाह करने वाले वहां मर जाते थे। उनके घंटियां बांधी होती थी, रस्सी बांधी होती थी शरीयत में, मूसवी शरीयत में। होता क्या था जी, काहिन अगर गुनाह करता था तो वहां ही मर जाता था और कोई आ नहीं सकता था। लाली के कबीले से नीचे बैठ जाए जी। ये अब पर्दा है जी, इधर खुदा है, दरमियान में कौन है जी, काहिन। इधर कौन है, बशर। इधर कौन है, इंसान। तो अब कफारे देता थे, बछड़े ज़बा होते थे, कुड़मी कबूतर ज़बा होते थे, चिड़िया परिंदे ज़बा होते थे, बछड़े ज़बा होते थे, बकरे ज़बा होते थे। रहाई नहीं, बाप से सुलह नहीं हो रही, सुलह नहीं हो रही। अब एक आसमानी बला जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बला जो सब जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। सब जहान के, हिंदू के गुनाह उठाए गए, सिख के गुनाह उठाए गए, और जितने भी मजहब है उनके गुनाह उठाए गए। जो बशर है, जो इंसान है, इस जमीन पर रहता है, उसके गुनाह यीशु मसीह उठाकर ले गया। सबके गुनाह उठाकर ले गया। अब वो कफारा मुकम्मल होना है जी। गत संबनी से जुल्म शुरू हो गया है जी। मुंह पर थूक रहे हैं, मुंह पर मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, कपड़े क्या कर रहे हैं। किसी के कपड़े फाड़ दिए जाए, किसी को नंगा कर दिया जाए, ब्रहन्ना कर दिया जाए, उसकी क्या हैसियत। कई कहते मैंने शर्म आती है, और यीशु आपके लिए बेशर्म बना ताकि आपको शर्म ना आ सके। खुदा के हसूर गुनाह मिट जाएगा। अब क्या हुआ, जब सलीब पर मारा, कोड़े लगाए, लहू लहान किया, तो फिर यीशु ने चला कर क्या की जी, जब चला कर जान दी तो हुआ क्या, हैकल का पर्दा फट गया। जब चला कर जान दी तो हुआ क्या, हैकल का पर्दा, और जो पर्दा था वो क्या हुआ, फट गया। कफारा कबूल हो गया। अब इंसान किधर खड़ा है, खड़ा हो जा। अब कहाँ खड़ा है, अब पर्दा तो नहीं है, अब दीवार तो नहीं है। कफारा कैसा हुआ, उस कफारा देने वाले ने इसका हाथ पकड़ा। जब भी वो जी नहीं जुड़े रहो। ये कफारे ने किया है, खुदा से मिला दिया, रसाई करा दी। अब इंसान को कफारे पर ईमान लाने से फायदा क्या हुआ, खुदा से मिल गया। पहले दूर था अब करीब है, पहले दूर था अब करीब है। कितना के करीब है, कफारे ने ये किया है। बैठते हैं जी। ये कफारे ने किया है जी, खुदा से मिला दिया, ये सुलह कराई है कीमत देके। शरीयत का असूल था भाई मुजरम को क्या दी जाए। अगर खुदा अपने बेटे को सजा ना देता तो मुंसफ था, नहीं नहीं मुंसफ नहीं था। मुजरम को वैसे छोड़ देना, करप्शन नहीं होता जी, खुली करप्शन। खुदा करप्शन नहीं करना चाहता था। खुदा ने क्या नहीं, शरीयत का तकाजा भी पूरा हो। शरीयत का क्या हो जी, तकाजा भी। उसने क्या किया, मुजरम को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लहू लहान का छड़ा। जिस्म कैसा था, उस पर क्या था, गुनाह। उस पर क्या था, बीमारियां। और भाई इतनी बड़ी बीमारी ने अटैक कर लिया, पता क्या, खून और पानी एक हो गया। बूंदे बन बन कर गिर रही है, बूंदे बन बन कर गिर रही है। खून और पानी एक हो चुका है। बदरूहों ने अटैक कर लिया है। अगर मैं त्यानू कहां एक गटर का पानी पियो, गंदगी का प्याला, मुश्किल हो गया ना, है ना। हाय हाय अंदरों आवाज आई, हाय हाय। हजरत पीता भी नहीं तो क्या ये ते कद समझ जाओ, कहंदा प्याला पीला, कहंदा बाप ये प्याला, ए गंदगी दा प्याला, ए जहान दी गंदगी दा प्याला, ए गुनाहां दा प्याला, ए गंदगी, ए
इंसान दी जबिल्लत च जड़ी गंदगी सी ओ पीवा मैं तो कभी नहीं पीती मेरी जात में भी ऐसी कोई चीज नहीं है उसने कहा बेटा तू पिए तो इसका एक फायदा होगा पहले तू एक बेटा है तू अकलौता है ये पलोठे बन जाए पलोठे नहीं ये ले पालक बन जाए तू अकलौता है ये ले पालक बन जाएंगे उसने क्या अच्छा उन्हें क्या कोई और है ही नहीं जेड़ा से गंदगी न पीले सारे गंदगी दे नाल भरे होए आ सारे दे अंदर गंदगी है सारे दे अंदर प्याले गंदे आ बाहर सफेदी पीली कब्राएं बाहर चिट्टा सूट पाया है काहे ने बाहर चिट्टा सूट पाया काहे ने यीशु ने क्या तुम सफेदी फिरी हुई अंदर गुबज है अंदर गंदगी है अंदर नापाकी है सारी रात को दुआ करने तो बाद चल फिर की हो सके तो टल जाए ते जे नहीं की होवे जी की होवे जी दानियल केड़ा प्याला और केड़ी गंदगी दा प्याला सी और जेड़ा हां वाह मेरा दानिश दा मलक दा रोज दा उस दानियल दा लियाज दा सारे दी गंदगी दा प्याला यीशु ने पी लिया जो यीशु ने पी लिया ते प्याला पींदा सारी बदरूआं दा अटैक बीमारियां दा अटैक ते लिखा मेरी जान मरने तक मरने तक शैतान चाहता है कल समझी जी मर जाए इत्थे ही रौला मुक जाए नहीं फरिश्ते आ गए तकबीर देने वास्ते चल दी सलीब तक कलवरी जरा तुसी कहा कलवरी पर हुआ क्या इंसान का लाज हुआ फिर इंसान दा मारिया लाज किया ठीक करो बादशाह ठीक करो ठीक नहीं हो रहा किसी ने उन्हें मारना पड़ना है इंसान ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਰਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਛਲਣੀ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ बीमारियां ते बदरूआ हवाला पड़े उसके ऊपर से बदरूहों को तार कर क्या किया जी कीलों से कुल्सियों में कीलों से क्या कर दिया जी जड़ दिया ये बात पक्की करो गुड़िया तू भी बात सुन जी मैं चाहूंगा हवाला पढ़ देता जाए जी कुर्सियों बाब नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर 14 जी और हुक्मों की वो दस्तावेज निकाल डालो हुक्मों की दस्तावेज ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਅੰਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਤਮਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਲਿਖਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ मिटा डाली ਨਾ ਸਰਾਖ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਸਰਾਖ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀ फिर इतने गावांगे फिर अगे पढ़ांगे रखे या ना खाता उस मेरे गुनाह गाइए रखे या ना खाता उस मेरे गुनाह दा मालिक है और मेरे रखे या ना खाता तो फिर अपना खोल के क्यों दसते हो तवार जदों ने खाता ही नहीं रखा लिया भाई तो फिर दस दे यार मेरे इन्ने गुनाह मेरे वो कहता बाइबल क्या कह रही खाना बाजी खाता ही गुनाहों का कोई खाता है गुड़िया गुनाहों का खाता है नहीं क्यों बेटा गुनाहों का खाता हाँ भाई रोज तेरा कामरान भाई क्या सराख कर छड़िया दस्तावेज चमड़े की जी दस्तावेज सी ना सराख की पैरों च हथां च 117 लोथड़े उतार छड़े दस्तावेज हजे भी गुनाह मचूर जी आगे और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली कफारे ने क्या किया दस्तावेज मिटा डाली इस खुदा से सुलह करा दी खुदा से मिला दिया आगे भी जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी किसके नाम थी जी हमारे खिलाफ और
और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर उसे क्या? सामने से हटा दिया। सलीब पर कीलों से सलीब पर क्या कर दिया? कीलों से जड़कर कीलों से जड़ के केले ठोक के आज दस्तावेज च केले ठोक के आ ताकि खाता कदी जड़े दफ्तर वाले हैं वो जानते हैं जिस फाइल में सराख हो जाए, पासपोर्ट पर सराख हो जाए, आईडी कार्ड पर सराख हो जाए, वो किसी काम नहीं आता, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है, उसका केस दोबारा नहीं लगता। आपका केस दोबारा नहीं लगेगा जी। उसने हुकूमतों को, किसको जी? हुकूमतों को बदरूहों को कहा जा रहा है जी जी। और इख्तियारों को, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर, अपने ऊपर से तार कर क्या किया? उनका बरमला तमाशा बनाया। उनका क्या किया जी? बरमला तमाशा बदरूहों का क्या बना? बरमला तमाशा तमाशा बना है बदरूहों का। बदरूहों का तमाशा बना है। आप ना डरे बदरूहों से, बदरूहों को कहे तुम्हारा तमाशा बना है। आगे लिखा उन पर फताबी का और सलीब के सबब से हाँ जी उन पर फतायाबी का शादियाना बजाया। फताबी का क्या बजाया गया? वो बदरूह देख के हंसिया करो देते। छोटे छोटे बच्चे जी, छोटे छोटे बच्चे बदरूह करते हैं, उन्होंने कहना बदरूह ते हंसो ते बदरूह चीका मार, क्योंकि इन्हें समझ आ गई है उन्होंने की बनाया गया तमाशा। और उन्होंने फताबी दा असी डालते हैं, असी डालते हैं। हाँ कही दा वो पता की होया जी? अब पिछले दिनों च मेरा पैर ना उस सरिये जे फस के ना जुत्ती भी गिली सी, बारिश भी पई सी, वो जुत्ती मेरी शनील दी सी, वो गिली सी, पैर भी और काफी स्लिप कर दी सी, वो आम रोड ते स्लिप कर दी सी, ब्रेक लो मैं स्लिप कर दी, मैं पौड़ियां थोड़ा डिग्गा कहंदे बदरूआं ने दा पैर फाड़ लिया। ओ भाई बदरूआं दी की जुरत है, इन्हां दा फताबी दा शादियाना बजाया गया। बहुत छू नहीं सकती। ज़बूर कान में लिखा है 10,000 तेरे दाएं गिर जाएंगी, 10,000 तेरे बाएं गिर जाएंगी और तुझे छूने ना पाएंगी। जो मसीही है उन्हें बदरूआ कहेगी हमें वक्त से पहले। आप कौन है? बूटा मसीह, शदाद मसीह, कामरान मसीह, अफजल मसीह, फलाना बदरूआ चिंबड़ियां नहीं चिंबड़ सकती मसीह नहीं। ऐ मसीह हमें वक्त से पहले, ऐ खुदा के बेटे तू आ गया है, क्या कर रहे? अच्छा कई वाला बदरूआ चंगियां पूछो किंज वो जान दिया यीशु मसीह खुदा ते राज करने वाला खुदा दा बेटा। तो कई जेडे मानदे ही नहीं खुदा दे बेटे नु उन्हां नु ते फिर किसी दर्जे बदरूआ चंगियां। बदरूआ खुद कहण नहीं है ऐ खुदा के बेटे हमें वक्त से पहले अज़ाब में भाई आपका कफारा हुआ, आपको गंदगी से उठाकर हज दफन ते रहन मरते ही रहन दिए ना, ईद वाले दिन जिंदा करें है ना। चलो तख्त पे बिठा देते कफारे ने तेन तख्त पे बिठाया। इफ्सियों पहला बात चौथी है क्या बात है? आयत लेके जाओ जी अपने घरां च जी। इफ्सियों बाब नंबर 1 है, आयत नंबर 4 से पढ़ें। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसने चुन लिया। क्या किया? किसको चुना जी? हमको क्या किया? हमको क्या किया? दानियल तुझे क्या किया? तो बोलना यार, चुन लिया। किस किस को चुना है? ओ ये तो सारी चुनी हुई कलीसिया है हालेलुया। और जेडे चुने होंगे वो खास होंगे। अब फ्रूट लैन जाइए ना रेडी तो मार्केट किन्नू से चुन चुन के चंगे 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 एंड चुन ले आए। किदों? आलम बनने से पहले आपको चुन लिया है। दानिश के पीछे जो बंदा बैठा उसे भी चुना है। भाई पहचान तुझे चुना हुआ है, तू खास है, तू अहम है। बेशक बंदा गुस्से में आके अपने आप को बर्बाद करी जा रहे हैं। कोई सिगरेट पी पी के बर्बाद करी जा रहा है, कोई पाउडर पी पी के बर्बाद करी जा रहा है, कोई शराब पी पी के। एक बंदा कहना मैं खुदा दी मानता तो मैं वेखा शराब पींदे नच नच के शराब पींदे ते कोई तो लत्ती लत्ती ते कहना मैं खुदा दी मानस। वाह मरिया दी ना बोम दफनाया नहीं।
पादरी ने मार तो दिता, दफनाया को नहीं, मिट्टी नहीं सही पाई। जे सही मिट्टी पाई होंदी ना तो फिर वो नहीं सी। भाई कफारे का मतलब ये है आप बच गए। कफारे का मतलब ये है तुम्हें चुन लिया है। चुनकर क्या किया जी? उसमें चुन लिया, उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक वाह, मोहब्बत में क्या बने जी? आखिरी हवाला मैं पढ़ना चाहूंगा और बेअब। बड़ा जबरदस्त कैथलिक ने तर्जुमा किया। कैथलिक बाइबल जिन्होंने घर जाके जरूर पढ़े, रोमियो 8वें बाब में। बस निकालिए रोमियो, पहली आयत स्टार्ट मैं लूंगा, आगे आपने पढ़ना है जी। और कैथलिक बाइबल जरूर घर में जाकर देखना। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म जेड़े मसीह च उन्हां ते सजा दा उन पर सजा का फतवा नहीं। कैथलिक बाइबल में उन पर सजा का फतवा नहीं। फतवा लगाया जाता था सजा देने से पहले, अब आप पर कोई फतवा नहीं। आगे भी ऐप नंबर 2 से, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। कफारे ने क्या क्या तो आजाद किया जी? मौत और शरीयत और गुनाह की शरीयत से आजाद कर दिया। कफारे ने आपको गुनाह से आजाद कर दिया, मौत से भी। अब आप मौत पर गालिब आ चुके। मौत आप पर गालिब नहीं आ सकती, मौत आपको दबा नहीं सकती। ये कफारे के ईमान लाने से फायदा होता है। आगे भी इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर न कर सकी, वो खुदा ने की। वहां क्या लिखा? खुदा। यहाँ खुदा लिखा ना? इतना सेहतमंद ये तर्जुमा नहीं है। कैथलिक ने यहाँ क्या लिखा है कामरान भाई? जो शरीयत ना कर सकी बल्कि बशरियत ने किया। बशरियत कौन है? यीशु मसीह ने बशरियत पहनी है। जो शरीयत ना कर सकी, जो शरीयत के इल्म ना कर सका, शरीयत के जो ज़ाब्ते ना कर सके, बल्कि बशरियत ने किया। जिसने बशरियत पहनी है, यीशु मसीह दो जातों का मजमुआ है। कलमे के अतबार से खुदा है, कलमे के अतबार से खुदा है, और के अतबार से वो बशरियत है। उसने बशरियत को पहना है। जो शरीयत ना कर सकी वो बशरियत ने किया, क्योंकि गुनाह भी इंसान ने किया है तो कफारा भी इंसान ने देना है। तो उस कफारे पर ईमान लाने से फायदा मंद हो। फायदा होया कोई या नहीं? कितना क्या हो गया? बहुत ज्यादा। खुदा दे करीब हो या दूर दूर हो? दीवार खत्म हो गया तो फिर गालो जुदाइयां मुक गईयां मौजा लग गईयां हनेरियां दी गाओ आमीन। खुदा बरकत दे। हनेरियां दी रात मुक गई।